بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھیری گلی میں سائے کی طرح چل رہی تھی۔ بھوک کا عذاب جسم میں سرایت کر چکا تھا، مگر اصل اذیت میرے بچوں کے چہرے تھے، زرد، کمزور اور آنکھوں میں صرف ایک سوال، اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ میرا دل چاہا کہ چیخوں، روؤں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کروں، مگر بھوک کے سامنے آسمان بھی خاموش تھا، زمین بھی۔ آج تیسرا دن تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکایا گیا۔ میں کسی معجزے کی تلاش میں گلیوں میں پھر رہی تھی، دروازے کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن کوئی میرا سوال سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر اچانک ایک عورت نے سرگوشی میں کہا، باجی رئیس مفت افطار بانٹ رہا ہے۔ میری نظریں اس پر جم گئی۔ کون رئیس؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہی رئیس جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر برباد کر دیتا ہے، مگر افطار بانٹ رہا ہے، جا کر لے لو۔ رئیس، اس کا نام سنتے ہی میرے وجود میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس شخص کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی۔ وہ ظالم تھا، بے رحم تھا، ایک درندہ تھا، مگر میرے بچوں کی بھوک میرے اصولوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو روکا، مگر بھوکے بچوں کی تصویریں ذہن میں گھوم گئی۔ پھر جیسے کسی اور کے بس میں چلتے ہوئے میں رئیس کے گودام کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ جگہ تاریک، پراسرار اور وحشت زدہ تھی۔ گودام کے اندر روشنی کی چند ہلکی شعائیں دیواروں پر پڑ رہی۔ اندر مختلف لوگ جمع، کچھ محتاج، کچھ رئیس کے درندہ صفت کاروبار کے ساتھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور راشن کی قطار میں جا کھڑی ہوئی۔ پھر میں نے اسے دیکھا۔ میرے جسم میں ایک زلزلہ آ گیا۔ سامنے روشنی کے حالے میں کھڑا شخص وہ احمد تھا۔ میرا دل سینے میں جیسے پھٹنے لگا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر احمد، جو 2 سال پہلے مر چکا تھا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، جس کی قبر پر روز جا کر فاتحہ پڑھتی تھی، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ مگر نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ، دماغ قبول کرنے کو تیار نہ، مگر آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہی چہرہ، وہی قد، وہی آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں نرمی نہیں بلکہ صفاقی تھی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، چند لمحوں کے لیے مجھ پر نظر ڈالی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی۔ خاتون، راشن لینے آئی ہیں یا بس دیکھنے؟ اس کی آواز برف کی مانے ٹھنڈی تھی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ احمد کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ کوئی دھوکہ ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرا دماغ کسی بھی طرح یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر میرے سامنے کھڑا شخص رئیس ہو بہو میرے مرحوم شوہر احمد کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ ایک دم کچھ بولوں۔ میں بس اسے گھورے جا رہی تھی، اور وہ ایک اجنبی کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے کسی عام ضرورت مند عورت کے سوا کچھ نہ ہوں۔ خاتون، راشن لینا ہے یا نہیں؟ وقت برباد نہ کریں۔ اس کی کرخت آواز نے مجھے جیسے کسی گہری نیند سے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ۔ یہ احمد کی آواز جیسی تھی، مگر اس میں وہ اپنائیت نہیں تھی، وہ نرمی نہیں تھی جو احمد کی شخصیت کا حصہ تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ رئیس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت دوڑ، مگر وہ فوراً اپنی روایتی شفاف مسکراہٹ میں بدل گئی۔ کیا مطلب؟ میں رئیس ہوں، یہ سوال کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ میرا دل ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ شخص احمد نہیں ہے۔ تم میرے شوہر کی طرح کیوں دکھائی دیتے ہو؟ میں نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ اس بار رئیس کھل کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر تھا، حقارت تھی۔ بی بی، دنیا میں ایک جیسے چہرے بہت ہوتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنی پرانی محبت یا مرے ہوئے شوہر کو دوسرے میں ڈھونڈنے لگے تو یہ دنیا پاگل خانہ بن جائے۔ میرا دل چاہا کہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ ماروں۔ یہ کس انداز میں بات کر رہا تھا؟ کیا یہ واقعی ایک اتفاق تھا یا پھر کوئی مکروہ سازش؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ اگر یہ احمد نہیں تھا تو اس کی شکل احمد جیسی کیوں تھی؟ اگر یہ احمد تھا تو اسے میری کوئی پہچان کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ میرا ذہن الجھ چکا تھا۔ رات کا سناٹا میرے دل کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میرے دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ میں آنکھیں بند کرتے ہی ماضی میں کھو گئی۔ احمد، میرے شوہر، میرے بچوں کے باپ، ایک نرم دل، عزت دار اور نیک انسان تھے۔ وہ ہمیشہ سچائی اور دیانت کے راستے پر چلتے تھے۔ ان کا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب کبھی کوئی حاجت مند ان کے پاس آتا، وہ اپنا آخری سکہ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ لیکن پھر وہ حادثہ ہوا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد تھا جب احمد کام پر گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ زینب، تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ ریحان بھائی، احمد کے سب سے قریبی دوست نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں ایک ہلکی لرزش تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد زندہ سلامت گھر سے گئے تھے، میں نے چیخ کر کہا تھا۔ وہاں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، احمد بھی۔ ریحان بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے احمد کی جلی ہوئی لاش نہیں دیکھی، بس اس کی قبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاش اس حد تک جل چکی تھی کہ اسے پہچاننا ممکن نہیں تھا، مگر ڈی این اے ٹیسٹ سے اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مگر آج
2 साल बाद रईस को देखकर मेरा दिल क्यों कह रहा था कि अहमद मरा नहीं था। क्या मेरे दिल का ये वहम था या कोई ऐसी हकीकत थी जिससे मैं अब तक अनजान थी? नहीं, ये हो नहीं सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर मुझे यकीन था कि कहीं न कोई गहरा राज था। मेरे दिल में एक जिद से पैदा होने लगी। अगर ये हकीकत थी तो मैं उसे जानकर रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया था, कल मैं रईस के माजी के बारे में मालूम करने की कोशिश करूंगी। ये जानना जरूरी था कि वो आदमी कौन था जो मेरे शौहर की तरह दिखता था मगर कहता था कि वो मुझे नहीं जानता। अगली सुबह सूरज निकला तो मेरे दिल में एक नई आग जल रही थी। मैंने पुरानी चादर ओढ़ी, बच्चों को हमसाए के सपुर्द किया और रईस के गोदाम के करीब जा पहुंची। ये जगह शहर के एक बदनाम इलाके में जहां आम लोग जाने से घबराते थे। मैंने गली के कोने में खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। गोदाम के अंदर रईस के आदमी भाग दौड़ कर रहे थे। कुछ लोग राशन लेकर जा रहे थे जबकि कुछ रईस के कारोबार के मुतालिक बातें कर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत करके एक उधेड़ उम्र के आदमी के करीब जा खड़ी हुई जो गोदाम के दरवाजे पर खड़ा हुक्का पी रहा था। चाचा, रईस के बारे में कुछ मालूम है? मैंने धीरे से पूछा। आदमी ने मुझे सर से पांव तक घूरा, फिर हंकारा भरा। सभी जानते हैं रईस को, मगर तुम क्यों पूछ रही? बस ऐसे ही। सुना है वो 5 साल पहले आया था, आदमी ने कहका लगाया। हाँ, अचानक नमोदार हुआ था, जैसे जमीन से निकल आया हो। किसी को कुछ मालूम नहीं कि कहाँ से आया, कौन था, क्या माजी था उसका। बस आया और आते ही शहर के सबसे बड़े सूदखोर बन गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 5 साल, मगर अहमद की मौत को तो 2 साल हुए थे। क्या ये महज इत्तेफाक था या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? क्या उसके घर वाले कभी आए? मैंने एहतियात से पूछा। आदमी ने सर हिलाया। नहीं, कोई नहीं, रईस अकेला है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मट्टी में दबा देता है। मेरी उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं। मैंने मजीद जानने की कोशिश की। क्या किसी ने कभी उसके माजी के बारे में पूछा? आदमी ने गहरी सांस ली। बहुत से लोग आए मगर या तो खामोश हो गए या शहर छोड़ गए। रईस को ज्यादा सवाल पसंद नहीं। मेरा मशवरा है कि तुम भी अपने काम से काम रख। मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैंने सोचा कि अगर मैं रईस के माजी का सुराग नहीं लगा सकती तो शायद उसके आसपास के लोग को इशारा दे सके। मैंने उसके चंद मुलाजमीन से बात करने की ठानी। मैंने रईस के एक खास करिंदे राशिद को बाजार में देखा। वो रईस के लिए सूद पर रकम लेने का काम करता था और कई लोगों को अपने चुंगल में फंसा चुका था। मैंने मौका देखकर उसके करीब जाकर बातचीत शुरू की। तुम कब से रईस के साथ काम कर रहे हो? मैंने बेख्याली से पूछा। राशिद ने मुझे घूरा, जैसे जांचने की कोशिश कर रहा हो कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। फिर उसने कंधे उचकाए। कई साल हो गए। रईस बड़ा आदमी है, बस किस्मत वालों को काम पर रखता है। मगर रईस आया कहाँ से था? मैंने अपना लहजा मामूली रखा, मगर अंदर से मेरा दिल धड़क रहा था। राशिद थोड़ा मोहतात हो गया। ये सवाल तुम क्यों कर रही हो? रईस को माजी की बातें पसंद नहीं। ये जवाब मेरे लिए और भी हैरान कुन था। कोई शख्स अपने माजी के बारे में बात करने से इतना गुरेज क्यों करे? बस यूं ही पूछ लिया। मैंने बात बदली और वहाँ से हट गई, मगर राशिद के रवैये ने मेरे शक को मजीद बढ़ा दिया था। अगले चंद दिनों में मैं रईस के आसपास रहने वाले कई लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर हर किसी का एक ही जवाब था। हमें उसके माजी के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं रईस पर नजर रखूंगी। वो कहाँ जाता है, किन से मिलता है, और सबसे बढ़कर क्या कभी उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर उभरता है जो उसकी पुरानी जिंदगी की झलक दे सके। मैंने फैसला कर लिया था, मुझे अहमद की कब्र पर जाकर एक बार फिर सब कुछ देखना होगा। अगले दिन मैं सूरज ढलने के करीब कब्रिस्तान पहुंची, वही जगह जहां मैं 2 साल से अहमद की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ती आ रही थी। मगर आज यहां आने की वजह कुछ और थी। मैं धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ी, मगर जैसे मैं वहां पहुंची मेरा जिस्म सुन हो गया। कब्र की तख्ती पर जो नाम लिखा था वो अब धुंधला चुका था। ये कैसे मुमकिन था? 2 साल से मैं यहाँ आ रही थी, अहमद की कब्र पर रोज फातिहा पढ़ती थी, मगर आज उसकी शिनाख्त मिट चुकी थी। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। मैंने हाथ से तख्ती को छू कर देखा, मगर हरूफ ऐसे गायब थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटाया हो। ये कुदरती हो सकता है ज़ैनब, हो सकता है। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल किसी और सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे अंदर एक सवाल उभरने लगा, क्या वाकई इस कब्र में अहमद दफन था या कोई और? ये सोचते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से कब्र के करीब बैठकर इर्द गिर्द देखा। क्या कोई और भी यहाँ आकर ये तख्ते मिटा चुका था? मेरे पीछे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान का रखवाला, एक बूढ़ा शख्स, मुझ पर गौर से नजरें गाड़े खड़ा था। बेटा, तुम रोज आती हो यहाँ, आज क्यों इतनी परेशान लग रही हो? उसने पूछा। मेरे लब कांपे।
میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، یہ قبر، اس کی تختی پر نام کیوں نہیں ہے؟ بوڑھے شخص نے کندھے اچکائے۔ پتھر پر لکھی تحریر وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہے بیٹی، پرانے قبروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام مٹی ہوئی تحریر نہیں تھی، یہ نشان مٹایا گیا تھا۔ قبر کی تختی پر احمد کا نام مٹ چکا تھا اور میرے دل میں بے شمار خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ میری بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت رئیس سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار میں اسے سیدھا سوال کروں گی، آخر وہ کون ہے؟ اگلے دن میں رئیس کے گودام کے قریب پہنچی۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ رئیس کے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے، لیکن میں بغیر کسی کی پرواہ کیے سیدھی اس کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ رئیس کرسی پر بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھوئیں کی تہ میں چھپی ہوئی تھیں۔ جیسے میں اندر داخل ہوئی، اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں اجنبیت تھی۔ بی بی، پھر آ گئی ہو؟ راشن کی ضرورت ہو تو آدمی اس سے لے لو، اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میرے دل میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں راشن لینے نہیں آئی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ رئیس نے سگار کو ایش ٹری میں بجھا دیا اور دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا۔ تو پھر میں نے گہری سانس لی اور ہمت جمع کر کے کہا، تم میرے شوہر کی طرح کیوں دکھائی دیتے ہو؟ چند لمحوں کے لیے رئیس خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کچھ عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے میرے سوال نے اسے چونکا دیا ہو، مگر پھر وہ ہنس دیا۔ بی بی، دنیا میں ایک جیسے چہرے کئی ہوتے ہیں، اگر میں تمہارے شوہر کی طرح لگتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ صرف مشابہت نہیں ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری حرکات، تمہارا انداز، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ کیا تم سچ میں نہیں جانتے کہ تم میرے احمد کی طرح کیوں دکھتے ہو؟ رئیس نے ایک لمحے کو مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا اور کندھے اچکا کر بولا، بی بی، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم مجھ سے کچھ ایسا پوچھ رہی ہو جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ تمہارے شوہر کی موت پر مجھے دکھ ہے، مگر میں وہ نہیں ہوں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اگر تم احمد نہیں ہو تو پھر تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پچھلے قدموں پر جاتے ہوئے کہا۔ رئیس نے صرف ایک ہی جواب دیا، یہ جاننا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ رئیس کو چھپا رہا تھا اور میں اس سچائی تک پہنچ کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ الفاظ ایک وارننگ تھی، ایک دھمکی یا شاید ایک حقیقت، مگر ان سے میرے تجسس کو اور ہوا مل گئی۔ اگر رئیس واقعی کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے میرے سوالوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر اس کے چہرے پر جو پل بھر کی جھجک آئی تھی، اس نے میرے دل میں شک کے بیج بو دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں احمد کے سب سے قریبی دوست ریحان بھائی سے ملوں گی۔ اگر کوئی میرے شوہر کے ماضی کے بارے میں جانتا تھا تو وہی تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زینب، اس وقت سب خیریت تو ہے؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، ریحان بھائی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے احمد کے بارے میں۔ ان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ زینب، تم اب تک احمد کی یادوں میں کیوں الجھی ہوئی ہو؟ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اگر میں کہوں کہ شاید وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، میں نے آہستہ سے کہا۔ ریحان بھائی کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے رئیس کے بارے میں بتایا، یہ کہ وہ ہو بہو احمد جیسا دکھتا ہے، کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا سیدھا جواب نہیں دیتا، کہ اس کے ماضی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ریحان بھائی خاموشی سے میری بات سنتے رہے، اور جب میں رک گئی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ زینب، احمد کی موت حادثے میں ہوئی تھی۔ ہم سب نے اس کی لاش دیکھی، حالانکہ وہ بری طرح جھلس چکی تھی، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ احمد ہی تھا۔ تم جس رئیس کی بات کر رہی ہو وہ کوئی اور ہوگا، مگر مجھے یہ جواب مطمئن نہیں کر سکا۔ ریحان بھائی، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لاش احمد ہی کی تھی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ریحان بھائی کے چہرے پر ایک سایہ سا ابھرا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ سچ کہوں زینب، تو لاش اتنی بری طرح جل چکی تھی کہ اصل شناخت ممکن نہیں تھی۔ ہمیں بس وہی ماننا پڑا جو ڈاکٹروں نے بتایا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اگر احمد کی موت کی تصدیق غلط ہوئی ہو، اگر وہ زندہ ہو اور کسی نے اس کی شناخت بدل دی ہو۔ ریحان بھائی نے میری طرف دیکھا، جیسے میرے سوال نے ان کے دماغ میں بھی کوئی طوفان کھڑا کر دیا ہو۔ یہ سب ناممکن تو نہیں زینب، مگر اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ 2 سال تک کہاں تھا، اور اگر رئیس ہی احمد ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں پہچان رہا؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب میں ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی۔ ریحان بھائی کی باتوں نے میرے دل میں شک کو اور گہرا کر دیا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رئیس کے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اگلے چند دن اس کے گودام، بازار اور اس کے قریبی لوگوں کے ارد گرد گھوم کر گزارے۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ پہلی بار اس شہر میں کب آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کون تھا، لیکن ہر کسی کا ایک ہی جواب تھا، کوئی نہیں جانتا۔ رئیس 5 سال پہلے اس شہر میں اچانک نمودار ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا سود کا کاروبار جمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کا سب سے بڑا سود خور بن گیا۔ وہ بے رحم تھا، ظالم تھا اور کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ میں نے جتنا زیادہ اس کے بارے میں سنا
उतना ही मेरे अंदर नफरत बढ़ती गई। रईस एक बेरहम दरिंदा। रईस के बारे में जो बातें मालूम हुई वो खौफनाक। वो गरीब लोगों को सूद के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता था। जो कर्ज ना चुका सकता उसका घर बर्बाद हो जाता, उसके बच्चे सड़क पर आ जाते और बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते। रईस ना सिर्फ सूद का कारोबार करता था बल्कि जुआ और लड़कियों की खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस था। उसका ताल्लुक शहर के कुछ बदनाम बदमाशों से भी था जो उसके लिए कर्ज न चुकाने वालों को सबक सिखाते। ये सब जानने के बाद मैंने खुद से सवाल किया, क्या मेरा अहमद ऐसा? मुझे लगा कि शायद मैं गलत थी। रईस की सफाकी, उसकी जालिमाना काम, मेरा शौहर कभी ऐसा नहीं हो सकता था। मगर फिर मेरे दिल ने सवाल किया, अगर रईस वाकई इतना जालिम था तो जब मैंने पहली बार उसे देखा उसके चेहरे पर वो पल भर की उलझन क्यों थी? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने में क्यों हिचकिचा रहा था? अब मुझे एक ऐसा सबूत चाहिए था जो ये साबित कर सके कि रईस वाकई अहमद था या नहीं। और फिर वो लम्हा आया जब मैंने रईस को अहमद की पुरानी अंगूठी पहने देखा। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये अंगूठी अहमद के पास थी। मैंने अपनी शादी के दिन खुद उसे पहनाई थी, तो फिर रईस के पास ये कैसे आई? मेरा शक अब हकीकत में बदलने लगा था, मगर मुझे अभी मजीद सबूत चाहिए थे। मैं रईस की हकीकत जानकर रहूंगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अहमद हमेशा कहता था कि ये अंगूठी उसके लिए बहुत खास है क्योंकि ये हमारे रिश्ते की निशानी थी। वो कभी भी उसे खुद से जुदा नहीं करता था। मगर जब उसका हादसा हुआ तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि अंगूठी कहाँ गई, और अब ये रईस के हाथ में थी। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैंने हिम्मत जिताई और रईस के सामने जा खड़ी हुई। उस वक्त वो अपने कुछ कारिंदों के साथ बैठा किसी मामले पर गुफ्तगू कर रहा था, मगर मुझे देखकर उसने आंखें सुकेड़ ली। बीबी, तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि माजी को खरीदना छोड़ दो। रईस का लहजा चुपता हुआ था, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने सीधा उसकी उंगली की तरफ इशारा किया। ये अंगूठी कहाँ से मिली? रईस ने एक लम्हे के लिए अपनी उंगली को देखा, फिर बेपरवाही से हंस दिया। ये बाजार से खरीदी। क्यों? झूठ। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने अपने दांत भींच लिए। मत झूठ बोलो, ये अंगूठी अहमद की थी। मैंने उसे अपनी शादी के दिन ये खुद पहनाई। रईस का चेहरा एक लम्हे के लिए स्पॉट हो गया। उसके माथे पर एक हल्की शिकन आई, मगर वो फौरन खुद को संभाल कर दोबारा हंस दिया। बीबी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना, ये मैंने बाजार से खरीदी थी। दुनिया में हजारों ऐसी अंगूठियां बनती हैं, मगर मैं जानती थी कि ये झूठ है। अगर ये आम अंगूठी होती तो उसके अंदर अहमद के नाम के पहले हरूफ क्यों कुनिंदा होते? मैंने चीख कर कहा। रईस का चेहरा लम्हा भर के लिए सख्त हो गया। उसके आदमियों ने हैरत से हमारी तरफ देखा। मैंने मौका गनीमत जाना और झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उंगली के अंदर कुनिंदा अल्फाज देखने की कोशिश की, मगर रईस ने फौरन अपना हाथ खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है? उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर उसकी आंखों में वही बेचैनी उभर आई थी जो मैं पहले भी देख चुकी थी। वो घबरा गया था। ये एक छोटा सा लम्हा था, मगर मेरे लिए काफी था। उसका यूं घबरा जाना इस बात का सबूत था कि मैं सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन रईस ने फौरन खुद को संभाला। वो खड़ा हुआ, मुझे घूरते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। ज़ैनब, मैं तुम्हारे बेहुदा सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैंने उसे पल भर के लिए हैरत से देखा। उसने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। मेरे पूरे वजूद में जैसे सनसनी दौड़ गई। ये आदमी झूठ बोल रहा था और मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया, अहमद की कब्र, क्या वो वाकई वहाँ दफन था? मेरे दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कब्रिस्तान के बूढ़े रखवाले से बात करने की कोशिश की, मगर उसने सख्ती से मना कर दिया। बेटी, किसी की कब्र को खुलवाना कोई मामूली बात नहीं, ये कानून के खिलाफ है, और वैसे भी अहमद की मौत की तस्दीक हो चुकी। तुम क्यों पुरानी कब्रें खोदने पर तुली हो? मगर मैं कहाँ रुकने वाली। मैं सीधा शहर के एक वकील के पास गई और उसे सारी कहानी सुनाई। देखिए, मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि कब्र में वाकई मेरे शौहर की लाश है या नहीं है। मुझे इजाजत चाहिए। वकील ने मुझे अजीब नजरों से देखा और साफ इनकार कर दिया। कब्र कुशाई कानून के खिलाफ है जब तक कि कोई मजबूत सबूत न हो कि वहाँ कोई और दफन है। आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं ज़ैनब बीबी? सबूत? मुझे सबूत चाहिए था। मैंने गौर किया, जब अहमद का हादसा हुआ था तो लाश पूरी तरह जल चुकी, लेकिन उसकी शिनाख्त किसने की थी? मुझे याद आया कि डॉक्टर अदनान, जो शहर का सबसे मोतबर डॉक्टर था, उसने अहमद की लाश की तस्दीक की थी। मगर जब मैं उसके क्लिनिक पहुंची तो एक और धमाका मेरा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर अदनान अब इस शहर में नहीं था। वो कुछ अर्सा पहले शहर छोड़कर चला गया था। क्लिनिक के एक मुलाजिम ने मुझे बताया। ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता था, या फिर किसी ने ये यकीनी बनाया था कि हकीकत कभी सामने न आए।
मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि अहमद की मौत का मामला इतना सीधा नहीं था जितना नजर आता था। मैं रईस की हकीकत खोज कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर कहाँ गया? मैंने डॉक्टर अदनान का पता लगाने की कोशिश की। मैं अस्पताल गई, उसके पुराने मरीजों से मिली, यहाँ तक कि उसकी एक साबिका असिस्टेंट से भी बात की। अदनान साहब कहाँ गए? मैंने असिस्टेंट से पूछा। वो शख्स झिझकने लगा। वो अचानक चले गए, किसी को कुछ बताए बगैर। बस क्लिनिक बंद कर दिया और अगले दिन शहर छोड़ दिया। कोई वजह? कहते थे कुछ परेशान कुन लोग उनसे मिलने आए थे। उसके बाद वो घबराने लगे। फिर एक दिन अचानक सब कुछ समेट कर चले गए। परेशान कुन लोग? मेरा दिल जोर से धड़का। क्या रईस के आदमियों ने उसे खामोश करवा दिया था? एक और झटका। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो मैंने एक पुरानी जान पहचान वाली नर्स को देखा। बेटा तुम यहाँ? नर्स ने हैरानी से पूछा। मैंने फौरन मौके से फायदा उठाया। आप डॉक्टर अदनान को जानती थी ना? उनके जाने से पहले कुछ अजीब लगा था आपको? नर्स ने इधर उधर देखा, जैसे किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाए। फिर वो धीरे से बोली, बेटा कुछ बातें पूछने से अच्छा है कि उन्हें भूल जाओ। कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये सुनकर मेरा जिस्म सुन हो गया। कौन लोग? मैंने दबे दबे लहजे में पूछा। नर्स ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली, डॉक्टर अदनान को किसी ने धमकाया था। वो कई दिनों से परेशान थे। एक दिन मैंने उन्हें फोन पर किसी से कहते सुना, ये लाश अहमद की थी या नहीं? मुझे अब भी शक है। मेरी सांसें रुक गई। तो क्या वाकई कब्र में अहमद नहीं था? नर्स की बात ने मेरे अंदर तूफान बर्पा कर दिया। अगर डॉक्टर अदनान खुद उस लाश की शिनाख्त पर शक कर रहा था तो इसका मतलब था कि मेरी सारी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। तो फिर रईस कौन था? क्या वो अहमद ही था या कोई और खेल खेला जा रहा था? मुझे यकीन हो चुका था कि डॉक्टर अदनान ने कुछ ऐसा देखा था जो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए था और इसी वजह से उसे खामोश करवा दिया गया। अब मुझे रईस से सच उगलवाना था, किसी भी कीमत पर। मैंने फैसला किया कि मैं रईस को ऐसे माजी के लम्हात दिखाऊंगी जो सिर्फ अहमद जानता था। मैंने अहमद और अपने बच्चों की कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली, वो तस्वीरें जो सिर्फ हमारे घर में मौजूद थीं, जिन्हें किसी और ने कभी नहीं देखा था। अगर रईस वाकई अहमद था तो उन तस्वीरों को देखकर उसके चेहरे पर कोई न कोई रद्द अमल जरूर आएगा। अगले दिन मैं रईस के गोदाम जा पहुंची। इस बार मैं खौफजदा नहीं थी, मैं जंग के लिए तैयार थी। रईस अपने आदमियों के साथ बैठा किसी से बात कर रहा था। जब मैं अंदर दाखिल हुई उसने मुझे देखते ही नागवारी से आंखें सुखेड़ ली। बीबी तुम फिर आ गई? मैंने कहा था ना माजी को कुरीदना छोड़ दो। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी चादर में से एक तस्वीर निकाली और उसके सामने रख दी। ये अहमद और हमारे सबसे बड़े बेटे हसन की तस्वीर थी। वो लम्हा जब अहमद ने हसन को पहली बार अपने कंधों पर बिठाया था। रईस की आंखें तस्वीर पर जम गई और फिर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला। वो लम्हा बहुत छोटा था, शायद 1 सेकंड का भी नहीं, मगर मैंने देख लिया था। रईस के चेहरे पर कुछ ऐसा आया था जैसे वो किसी भूली बसरी याद को खोजने की कोशिश की, मगर वो फौरन संभल गया। उसने तस्वीर उठाकर एक नजर देखी और तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये क्या है? क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारा मरहूम शौहर हूँ? बीबी तुम पागल हो गई हो। मगर मैं जानती थी कि ये उसका असली रद्द अमल नहीं था। मैंने एक और तस्वीर निकाली, अहमद की शादी के दिन की तस्वीर, जिसमें उसने वही अंगूठी पहन रखी थी जो आज रईस के हाथ में थी। रईस की उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं और उसके चेहरे पर तनाव सा आ गया। मैं सही रास्ते पर थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? रईस की आवाज में अब पहले जैसा एतमाद नहीं था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। वो मुझे खामोशी से घूरता रहा, फिर धीरे से उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जो मुझे और ज्यादा खौफजदा कर गई। अगर तुम सच जानना चाहती हो ज़ैनब तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। रईस सच जानता था, मगर वो मुझे यूं आसानी से कुछ नहीं बताने वाला था। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच जान कर रहूंगी। रईस ने हल्का सा कहका लगाया, जैसे मेरी बात उसे महज एक मजाक लग रही हो। बीबी तुम सच सुनना चाहती हो, मगर सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आजमा लो, मैंने सख्त लहजे में कहा। रईस ने पल भर को मेरी तरफ देखा, फिर हंकारा भरते हुए कुर्सी से उठा। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मेरा मशवरा है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। जो मर चुका है उसे मरने दो। मेरे दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अगर अहमद वाकई मर चुका है तो तुम्हारी उंगली में वही अंगूठी क्यों है? तुमने तस्वीरों को देखकर पल भर के लिए क्यों चौंका था? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम था जब मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया? मेरे सवालात रईस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तनाव ले आए, मगर वो जल्दी ही अपने रवायती सफाक लहजे में बोला, तुम्हारी जुस्तजू खतरनाक साबित हो सकती है ज़ैनब। बात सच ऐसे होते हैं जो बेहतर होता है कि दफन ही रहें, लेकिन मैं इस सच को दफन नहीं होने दूंगी। मैं जान गई थी कि रईस को छुपा रहा है और वो सच मुझसे जितना भी छुपाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। अगली रात मैंने एक फैसला किया, मैं रईस का ताकुब करूंगी। मैंने एक बड़ी चादर ओढ़ी और रईस के गोदाम के करीब छुप कर खड़ी हो गई। देर रात
रईस अपने चंद आदमियों के साथ एक गाड़ी में बैठा और कहीं रवाना हो गया। ये मौका था। मैंने रिक्शा लिया और गाड़ी का ताकुब करने लगी, वो जगह जहाँ सिर्फ अहमद जाता था। गाड़ी सुनसान सड़कों से गुजरती हुई एक पुरानी इमारत के करीब जाकर रुक गई। मैंने करीब आकर गौर से देखा और जैसे ही मैंने वो इमारत पहचानी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये अहमद की पसंदीदा जगह थी। ये वही छोटा सा पुराना कैफे था जहाँ अहमद अक्सर जाया करता था। वो कहता था कि उसे यहाँ की चाय पसंद है और यहाँ बैठकर वो अक्सर घंटों सोचा करता था, तो रईस यहाँ क्यों आया था? मैंने सांस रोकी और गौर से देखा। रईस तन्हा गाड़ी से उतरा, कैफे के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ एक मेज पर बैठ गया। वेटर आया और रईस ने कुछ ऑर्डर किया। मैं और ज्यादा हैरान रह गई जब वेटर चाय लेकर आया, बिल्कुल वही चाय जो अहमद पिया करता था। ये सब एक इत्तेफाक था या फिर रईस को अहमद की यादें थी? मेरा सर चकराने लगा। सच मेरे करीब था, बहुत करीब। ये अहमद ही था। मगर फिर सवाल ये था कि वो अपनी पहचान से इनकार क्यों कर रहा था? क्या वो वाकई सब कुछ भूल चुका था या जानबूझकर छुपा रहा था? और अगर वो सब कुछ जानता था तो वो सूदखोर कैसे बन गया था? ये सब सवाल मुझे मजीद बेचैन कर रहे थे। मैंने हिम्मत जताई और खामोशी से कैफे के अंदर दाखिल हो गई। रईस मुझे देख न ले, इसलिए मैं कोने में बैठकर उस पर नजर रखने लगी। रईस की नजरें मुसलसल दरवाजे पर जमी हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चंद मिनट बाद एक लंबा सफेद शलवार कमीज पहने आदमी कैफे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 50 के करीब थी। चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब सी चमक थी। ये कौन था? रईस ने उस आदमी को देखकर सर हिलाया और वह शख्स उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अपनी चादर को मजीद अपने चेहरे पर लिपेटा और गौर से सुनने की कोशिश की। तुम्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं रईस, ये जगह महफूज नहीं है, आदमी ने सख्त लहजे में कहा। रईस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय का घूंट लिया। ये जगह मुझे पसंद है, वो आदमी बेजारी से बोला। तुम्हें माजी में जिंदा रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए रईस। जो तुम थे वो अब नहीं हो। तुम्हें अपना असल मकसद याद रखना चाहिए। जो तुम थे वो अब नहीं हो। ये सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई। रईस की आंखों में एक लम्हे के लिए बेचैनी झलकी, मगर वो फौरन अपनी रवायती सफाकी में लौट आया। फिक्र मत करो, मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगा। जो काम शुरू किया है उसे खत्म भी करूंगा। आदमी ने गहरी सांस ली और मेज पर हाथ मारकर बोला, यही सुनना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ लोग गैर जरूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो औरत ज़ैनब, तुम्हें उसका मसला जल्द हल करना होगा। मेरा दिल दहल गया। ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। रईस ने लम्हे भर के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, ज़ैनब मेरे लिए कोई खतरा नहीं। वो ज्यादा सवाल कर रही है, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलेगी। ज्यादा देर नहीं चलेगी? ये सुनकर मेरे हाथ पसीने से भीग गए। क्या रईस वाकई मेरी जिंदगी खत्म करने का सोच रहा था या फिर ये धमकी बस एक चाल थी? मैं बहुत गहरे पानियों में उतर चुकी थी और अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैंने फौरी फैसला किया, मुझे उस आदमी के बारे में मालूम करना होगा। रईस के साथ उसका क्या ताल्लुक था? वो उसे अहमद की पहचान से दूर क्यों रख रहा था? अगर मुझे सच जानना था तो मुझे रईस के माजी की उन तारीक राजों को खोलना होगा जिन्हें वो दफन रखना चाहता था। मैं अब बहुत करीब थी और मुझे हर कीमत पर यह खेल खत्म करना था। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो डॉक्टर जिसने अहमद की मौत की तस्दीक की थी, डॉक्टर अदनान। अगर कोई ऐसा शख्स था जो उस मामले को सबसे बड़ी कड़ी जोड़ सकता था तो वो वही था। मैंने उसके शहर छोड़ने की बात सुनकर हिम्मत नहीं हारी। मैंने हर मुमकिन जरिए से उसका सुराग लगाने की कोशिश की और आखिरकार एक पुराने जानने वाले से मालूम हुआ कि डॉक्टर अदनान किसी दूसरे शहर में एक छोटे क्लिनिक में काम कर रहा था। मैंने बगैर वक्त जाया किए सफर किया और उस तक पहुंच गई। डॉक्टर अदनान मुझे देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? उसने बेयकीनी से कहा। मुझे सच जानना है डॉक्टर साहब, मैंने सख्त लहजे में कहा। अहमद की लाश, वो वाकई उसकी थी या नहीं? डॉक्टर अदनान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो हिचकिचाया, मगर जब मैंने उसे बताया कि रईस अब भी जिंदा है और हूबहू अहमद जैसा दिखता है तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। ये मुमकिन नहीं, वो सरगोशी में बोला। मुमकिन है, और मैं जानना चाहती हूँ कि अहमद के साथ क्या हुआ था। मैंने इसरार किया। डॉक्टर अदनान ने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ज़ैनब, तुम जिस सच की तलाश में हो वो बहुत खतरनाक है, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं दम साधे सुनने लगी। हादसे के दिन 2 लाशें आई थी और दोनों जल चुकी थी। उनमें से एक लाश की शिनाख्त करना तकरीबन नामुमकिन था, जबकि दूसरी की हालत कुछ बेहतर थी। लेकिन क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर अदनान ने सर झुकाकर कहा, किसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस लाश को अहमद करार दूं, जबकि हकीकत में उसकी शिनाख्त कभी साबित नहीं हुई। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। कौन था वो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर अदनान ने धीरे से कहा, यही तो मैं नहीं जानता। बस इतना याद है कि कुछ बादशाह लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे धमकाया और मुझे झूठा बयान देने पर मजबूर किया। क्या उसमें रईस शामिल था?
मैंने बेसब्री से पूछा। डॉक्टर अदनान ने लम्हे भर के लिए सोचा, फिर बोला, मुझे उस वक्त उसका चेहरा याद नहीं, मगर अगर रईस वाकई अहमद है तो शायद वही था। सब कुछ उलट गया, मेरी दुनिया जैसे हिलकर रह गई। तो अहमद कभी मरा ही नहीं था, किसी ने उसकी शनाख्त बदल ली थी, उसे जला हुआ करार देकर एक नई शनाख्त दे दी गई। मगर क्यों? अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं रईस के सामने जाकर ये सच बोल लेती, या फिर मैं मजीद गहराई में जाकर ये मालूम करती कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। क्या रईस खुद उस साजिश में शामिल था, या वो भी किसी का शिकार बना? मेरी सांसें बेतरतीब हो रही, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैं सीधा रईस के गोदाम पहुंची। ये रात का वक्त था और मैं जानती थी कि अब मैं अपने सवालात के जवाब लिए बगैर वहाँ से नहीं हटूंगी। रईस अपने दफ्तर में था। मैंने दरवाजा जोर से खोला और अंदर जाकर सीधा उसकी आंखों में देखा। ये खेल अब खत्म रईस, मैं सब कुछ जानती हूँ। रईस ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर एक तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। क्या बात है ज़ैनब, आज बड़ी पुरएतमाद लग रही हो, क्योंकि मैंने सच जान लिया है, मैंने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। रईस की मुस्कुराहट मधम पड़ी, मगर वो अब भी खुद को काबू में रखे हुए था। अच्छा तो बताओ, क्या सच जाना तुमने? मैंने कदम आगे बढ़ाया और गहरी सांस ली कि तुम अहमद हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रईस के चेहरे का रंग पल भर के लिए बदला, मगर फिर वो हंसा। ये तुम्हारा वहम है ज़ैनब, डॉक्टर अदनान ने सब कुछ बता दिया है। मैंने मजीद जोर देकर कहा। उसने माना कि अहमद की लाश कभी पहुंचानी नहीं गई थी, या किसी ने उसे मजबूर किया था कि वो झूठ बोले। और तुम्हारा वो आदमी जो तुम्हें माजी से दूर रहने का कह रहा था, वो सब जानता है रईस, अब झूठ मत बोलो। रईस का चेहरा सख्त हो गया। वो कुर्सी से उठा और मुझ तक आ गया। उसकी आंखों में वही सफाकी थी जो मैंने हमेशा देखी, मगर आज उसमें कुछ और भी था। क्या वो खौफ था? अगर तुम्हें लगता है कि मैं अहमद हूँ तो साबित करो, रईस ने चैलेंज दिया। मैंने फौरन वो आखिरी पत्ता फेंक दिया जो मेरे पास था। अगर तुम अहमद नहीं हो तो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। रईस का रंग फक हो गया। वो एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक तजब्जुब सा उभरा, जैसे वो किसी चीज से लड़ रहा हो, किसी भूली बसरी याद से, या शायद खुद से। डीएनए टेस्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा, मैंने इसरार किया। रईस ने कुछ देर मुझे घूरा, फिर धीरे से बोला, बीबी तुम जो चाहो कर लो। उसके लहजे में पहली बार थकन थी, या शायद शिकस्त। मैंने फैसला कर लिया था कि पीछे नहीं हटना। अगले ही दिन मैं अस्पताल गई और डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाने के तरीकेकार के बारे में बात की। मगर जब मैं रईस के पास दोबारा पहुंची तो उसका रवैया हैरानकुन हद तक बेपरवाह था। ठीक है, कर लो टेस्ट। उसने कंधे उचकाए जिससे कोई फर्क ही न पड़ता हो। डीएनए रिपोर्ट हैरान को नतीजा। चंद दिनों के इंतजार के बाद वो लम्हा आ गया जिसने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डीएनए रिपोर्ट में आया था कि रईस का खून अहमद से मेल नहीं खाता। ये कैसे मुमकिन था? मेरा दिल डूबने लगा। मैंने ये सोचकर इतनी मेहनत की थी कि रईस अहमद है, मगर रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही थी। ये झूठ हो सकता है, मैंने खुद से कहा। कहीं किसी ने रिपोर्ट बदली तो नहीं? मगर अस्पताल के डॉक्टर ने तस्दीक की कि टेस्ट बिल्कुल दुरुस्त था। तो फिर तो क्या मैं इतने दिनों से किसी वहम के पीछे भाग रही थी? क्या रईस वाकई कोई और था? क्या मैंने हकीकत को समझने में गलती कर दी? मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। शायद मैं वाकई पागल हो गई थी। मैंने खुद से कहा, अहमद मर चुका है और मैं बस एक ऐसे शख्स को उसमें देखने की कोशिश कर रही थी जो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं शिकस्ता दिल होकर गोदाम से बाहर निकली। रईस ने भी मजीद कोई बात नहीं की। वो बस मुझे खामोशी से देखता रहा, जैसे वो जानता था कि अब मैं हार मान चुकी हूँ। चंद दिन बाद मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मुझे माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। मगर फिर एक रात जब मैं अपने बच्चों को सुला रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और सामने रईस खड़ा था। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रईस की आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे वो किसी बड़े तूफान से गुजर चुका हो। और फिर उसके होंठों से वो अल्फाज निकले जिन्होंने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ दिया। ज़ैनब, मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। रईस की आंखों में वही तासुर था जो अहमद की नजरों में होता था। दर्द, पछतावा और एक ऐसा बोझ जिसका वजन लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या कहा तुमने? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रईस ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर छुपा हुआ तूफान काबू में लाने की कोशिश कर रहा। ज़ैनब, मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरी टांगों से जान निकलने लगी। मैंने दरवाजे का किनारा पकड़ लिया ताकि खुद को संभाल सके। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेयकीनी से सरगोशी की। रईस ने मेरी आंखों में झांका और उस लम्हे में कुछ बदल गया। उसकी नजरें अब रईस की नहीं अहमद की थी। मुझे याद है कि मैं अहमद था, मगर मुझे ये भी याद है कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। रईस नहीं, अहमद ने कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ था? अहमद की आंखों में अजियत उभरी। उस दिन जब वो हादसा हुआ था, वो एक आम हादसा नहीं था।
زینب وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، مجھے کوئی مارنا چاہتا تھا۔ احمد نے مٹھی بھینچ لی، مجھے کسی گودام میں لے جایا گیا تھا، وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، مگر جانے کیسے میں بچ گیا۔ لیکن جب میں ہوش میں آیا میں اپنی پرانی زندگی بھول چکا تھا، میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مگر پھر تم رئیس کیسے بن گئے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے کسی نے نئی شناخت دی، مجھے ایک بے رحم سود خور بنایا، مجھے وہ سب کچھ سکھایا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احمد کی آواز میں غصہ تھا اور مجھے یقین دلایا کہ میری پرانی زندگی ختم ہو چکی ہے، کہ میں کبھی کسی اور کا تھا ہی نہیں۔ کون تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ احمد نے سرد لہجے میں کہا، وہی شخص جو مجھے ماضی سے دور رکھنا چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ میں کبھی سچائی تک نہ پہنچوں۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، وہ پراسرار آدمی، وہی آدمی جو تمہیں اس دن کیفے میں ملا تھا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ احمد نے سر ہلایا۔ ہاں، وہی شخص جس نے میری شناخت بدلی تھی، جس نے مجھے رئیس بنایا، جس نے مجھے میرے ماضی سے کاٹ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ احمد نے گہری سانس لی اور اس کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ میں خود کو پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا زینب، اس کی آواز میں اذیت تھی، مگر جب تم نے میرا سامنا کیا، جب تم نے وہ تصویریں دکھائیں، جب تم نے میری انگوٹھی کی بات کی، سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دماغ میں لوٹنے لگا۔ لیکن میں ڈرتا رہا، مجھے لگا شاید میں تمہارے پاس لوٹنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں احمد، میں نے کہا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں زندہ سمجھا، ہمیشہ تمہیں ڈھونڈا، ہمیشہ سچ کے پیچھے گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ احمد نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ زینب، جو مجھے رئیس بنانے والے ہیں وہ ہمیں آسانی سے جینے نہیں دیں گے، وہ مجھے دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سامنے کھڑا شخص جو 2 سال تک رئیس کہلاتا رہا، احمد تھا، میرا احمد۔ لیکن یہ خوشی ادھوری تھی۔ جو لوگ مجھے رئیس بنانے کے پیچھے تھے وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے زینب، احمد نے کہا۔ اس کی آواز میں وارننگ تھی۔ تو کیا ہم سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں احمد، ہم انہیں بے نقاب کریں گے اور تمہیں تمہاری اصل شناخت واپس دلائیں گے۔ احمد نے گہری سانس لی۔ یہ آسان نہیں ہوگا، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں لیکن ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہم چپ رہے تو وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے۔ احمد نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے بعد اس کی نظریں فیصلہ کن ہو گئی۔ ٹھیک ہے زینب، اب وقت آ گیا ہے کہ میں رئیس کو دفن کر کے احمد کو واپس لاؤں۔ ہم نے مل کر ایک پلان بنایا۔ احمد نے رئیس کے طور پر ان لوگوں سے آخری ملاقات کا فیصلہ کیا جو اس کے پیچھے تھے۔ میں نے ریحان بھائی کو اعتماد میں لیا اور پولیس تک بات پہنچانے کا انتظام کیا۔ اس رات احمد اسی پراسرار آدمی سے ملنے گیا جو ہمیشہ اسے ماضی بھولنے کا کہتا تھا۔ تم نے کہا تھا میں اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دوں، مگر میں جان گیا ہوں کہ میری پرانی زندگی کو زبردستی مجھ سے چھینا گیا، احمد نے کہا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ تمہیں یاد آ گیا؟ ہاں، سب کچھ، احمد نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے رئیس بنایا، میرے ماضی کو دفن کیا اور ایک سود خور بنا دیا، مگر کیوں؟ آدمی ہلکا سا ہنسا۔ کیونکہ تم ہمارے راستے کی رکاوٹ تھے، تم نے کبھی کرپشن میں ہاتھ نہیں ڈالا، تم ہمارے لیے کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو ہمارے کنٹرول میں ہو اور ہم نے تمہیں وہ شخص بنا دیا۔ یہی سچ تھا۔ احمد کو سود خور بنانے کے پیچھے شہر کے کچھ طاقتور لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ ان کے اشاروں پر چلے۔ جب احمد نے ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے مارنے کی سازش کی، مگر جب وہ مرنے کی بجائے اپنی یاداشت کھو بیٹھا تو انہوں نے موقع دیکھ کر اسے رئیس بنا دیا۔ مگر اس بار وہ نہیں بچے۔ جیسی آدمی نے احمد کو دھمکانے کے لیے پستول نکالا، پولیس نے دھاوا بول دیا۔ ریحان بھائی نے وقت پر سب کو اطلاع دے دی تھی۔ تم لوگ تو مر چکے تھے، آدمی چیخا۔ نہیں، سچائی کو مارا نہیں جا سکتا، احمد نے کہا، اور پولیس نے مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب ختم ہوتے ہی احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی زینب، مگر تم نے کبھی ہار نہیں مانی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو۔ میں نے آنسوں کے ساتھ مسکرا کر کہا، رئیس مر چکا تھا، احمد واپس آ چکا تھا، اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔